गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग प्यारे बच्चों. In our previous discussions, we have discussed about inertia in linear motion. Inertia in linear motion. Yes, you must be knowing about this particular quantity, okay, which we are calling as inertia. Okay, let's take a quick recap. How we define inertia. Now, inertia, you must be aware of, we defined as inability of the body to change its state by itself. Yes? And if we want to change the state of the body, that is from rest to motion, okay, or motion to rest, okay, or a body is moving along a straight line, we want to change the direction of the motion, we need to apply force. Okay, whenever we wish to change the state of the body, we need to apply force. A body is unable to change its state by itself. The body is inert. The quantity of inertness associated with the body is called as inertia. You all are aware of this particular thing. Yes, we defined this particular quantity in laws of motion. Okay, when discussing the details of linear motion and Newton's first law of motion, we defined this particular quantity, the degree of inertness of the body, okay, the degree of inability of the body to change its state by itself as inertia. आराम से इसको वीडियो को पॉज करो और रीड दिस पर्टिकुलर थिंग. Whatever I said, this is saying the same thing. We defined inertia, okay, this particular quantity as inertia in linear motion. Okay, now we want to study about the same quantity in case of rotational motion. So we will be saying that particular thing as rotational inertia. Same quantity, that is inertia, same quantity, which we are defining inertia, okay, in linear motion, that is called as rotational inertia or moment of inertia in case of rotational motion. Okay, because same thing is happening, okay, same inability the body is demonstrating, okay, when it is rotating or moving around some particular axis. Okay, so inability of the body to change its state by itself when it is moving around some particular axis, that defines rotational inertia, or that is called as moment of inertia. Hope you have understood what basically is moment of inertia. What is rotational inertia? The quantity which measures the inability of a body to change its state by itself in case of rotation is defined as rotational inertia or moment of inertia. Hope you have understood the basic concept about moment of inertia or rotational inertia. Now, to go into the details of moment of inertia, let's consider a rigid body moving around some axis of rotation and write its kinetic energy. Okay, and then we will be proceeding to define moment of inertia. Let us see how. Now, to calculate the kinetic energy in situation of rotation, we are considering a rigid body. Okay, rigid body which is going around z-axis, in xy plane. This is your x-axis, this is your y-axis, and this is your
z axis. This is a rigid body, okay, made of particles m1 situated at a distance r1, particle m1 situated at distance r1, m2 situated at perpendicular distance r2, okay, m2, and like that, m2 situated at perpendicular distance r2, m3 situated at perpendicular distance, okay, r3, and nth particle is situated at rn, perpendicular distance from the axis of rotation, okay, and this body is going around z axis with constant angular velocity omega. It's okay. Now we will be calculating the kinetic energy of this rigid body, which is made of n number of particles situated at perpendicular distances r1, r2, r3 up till rn from the axis of rotation. Okay, now as you all know, kinetic energy is a scalar quantity. ठीक है, तो डायरेक्शन का तो कोई मैटर ही नहीं है. फाइन, डायरेक्शन का तो मैटर ही कोई नहीं है. अब हमें काइनेटिक एनर्जी हर एक पार्टिकल का फाइंड करना है. ठीक, ओके, तो हर एक पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके हम उसका सम कर देंगे विदाउट थिंकिंग ऑफ द डायरेक्शन. ठीक है, तो वी विल बी गेटिंग द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. इट्स ओके, लेट अस सी. Now, kinetic energy of mass m1, that will be equal to, you all know this particular thing, half m1 and velocity of first particle whole square. But velocity तो हमें पता ही नहीं है first particle का. नहीं पता ना. जो डाटा ऑलरेडी हमारे पास है, ओके, वो ये है कि this body is going around axis z axis, okay, and m1 is situated at perpendicular distance r1. ठीक है, तो अगर मैं इसके वेलोसिटी की बात करूं, इसका वेलोसिटी विल बी अलोंग द टेंजेंट, है ना. टेंजेंट के अलोंग होगा, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो टेंजेंट के अलोंग इसका वेलोसिटी होगा v1. टेंजेंट के अलोंग होगा, कितना होगा, हाउ दैट विल बी रिलेटेड टू एंगुलर वेलोसिटी, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, जस्ट थिंक. नाउ velocity can be replaced with half mass is m1 and velocity v1. Velocity is equal to v1 is equal to r1, that is perpendicular distance and the angular velocity. ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ना. फर्स्ट पार्टिकल के लिए जो पोजीशन वेक्टर है, परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसको एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, जो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा. ठीक है, तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा. तो ये वैल्यू मैं यहां पे प्लेस कर रहा हूं, r1 ओमेगा होल स्क्वायर. नाउ सॉल्विंग दिस वी आर गेटिंग हाफ m1 r1 square omega square for the first particle. This is kinetic energy of first particle. Okay, now kinetic energy of next, second, third and fourth particles will be similarly we can write now kinetic energy of mass 2, that will be equal to half mass m2 length of distance, perpendicular distance of the particle from the axis of rotation, that is r2 square and omega square. And similarly we can write for other particles. Now similarly for third particle and nth particle. Now अब हमें करना क्या है, हमें टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है रिजिड बॉडी की.
ओके, और वो रिजिड बॉडी कैसा है? दिस इज द रिजिड बॉडी। ठीक, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, सेकंड, जितने भी n पार्टिकल्स हैं सबके काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट सम कर दो, हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी अराउंड दिस एक्सिस आ जाएगा। करें? काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी, फर्स्ट पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 r1 स्क्वायर एंड ओमेगा स्क्वायर प्लस सेकेंड पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस अप टिल nth पार्टिकल्स, ओके, nth पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो गया रिजिड बॉडी का। अब इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है वो देखो, तो हाफ कॉमन, इट्स ओके, ओमेगा विल बी कॉमन, है ना? तो ये लो जी, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टिल mn rn स्क्वायर और साथ में यहां पे आ गया ओमेगा स्क्वायर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। अब ये जो ब्रैकेट टर्म है इसको थोड़ा प्रोसेस कर दें, ठीक है, ताकि इतना सेम टर्म है एंड रिपीट कर रही है ना? तो मैथमेटिक्स में हम इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं बेटा, समेशन ऑफ मास ith perpendicular distance from the axis of rotation square. If I is equal to 1 then this will be generating a term m1 r1 square. अगर I का वैल्यू 2 हो जाए m2 r2 square, फिर उसके बाद सबका सम करना है, तो I का ये समीशन लगा दिया, I ranges from 1 to n. This particular thing, okay, हमने इसको ऐसे रिप्लेस हो गया, ये m1 r1 square प्लस m2 r2 square प्लस अप टिल mn rn square. इट्स ओके, ठीक है? तो इस ब्रैकेट टर्म को कंपैक्ट करके लिख दिया जाए, तो वी आर गेटिंग E काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी एज हाफ, ये ब्रैकेट टर्म हमारा आ गया समेशन m I r I square and I ranges from 1 to n. It's okay, bracket close and omega square. We are getting this particular term. Okay, ये टर्म हमें, ये पूरा जो इक्वेशन है, रिलेशन, हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी इन द गिवन सिचुएशन प्रोवाइड कर रहा है। नाउ सी, ये जो क्वांटिटी हमारे ब्रैकेट में आया है, यस, दिस क्वांटिटी बेसिकली इज हैविंग टू पार्ट्स। ध्यान से देखना, वन इज मास ऑफ द पार्टिकल, सेकंड इज परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, होल स्क्वायर। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको व्हेन डिस्कसिंग डायमेंशनल एनालिसिस आई टोल्ड यू दिस पर्टिकुलर थिंग, जब हम किसी भी क्वांटिटी को परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वट एवर मे बी पावर ऑफ द, ठीक है ना? ओके, दिस इज लेंथ ऑफ आर्म ऑफ रोटेशन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन होल स्क्वायर। ओके, वट एवर मे बी पावर ऑफ द लेंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब क्वांटिटी को परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मोमेंट कहते हैं उसको। जैसे हमने टॉर्क को कहा था मोमेंट ऑफ फोर्स,
क्या था वो? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन। तो परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन से फोर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमने उसको कह दिया था मोमेंट ऑफ फोर्स, और फिर टॉर्क को हमने ऐसे डिफाइन किया। सिमिलरली हमने एंगुलर मोमेंटम को कहा था, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ मोमेंटम। क्या था? लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन। यहां पे हो क्या रहा है? यहां पे मास इज मल्टीप्लाइड विद लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, लेकिन पावर स्क्वायर है, कोई बात नहीं। ये होगा मोमेंट ऑफ मास। मास जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है? लीनियर मोशन के केस में जाओ, अगर आपको याद हो, मास बेसिकली प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। ओके, तो इनर्शिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन होल स्क्वायर। तो एज पर टर्मोलॉजी हमें इस क्वांटिटी को, जिसमें हम इनर्शिया को परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आर्म ऑफ रोटेशन के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें इस टर्म क्वांटिटी को क्या कहना चाहिए? हमें इस क्वांटिटी को कहना चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, ये जो ब्रैकेट वाला टर्म है, ओनली दिस, ओके, ये जो टर्म हमने डिफाइन किया, ये MIRI स्क्वायर summation, this particular thing is defining the quantity moment of inertia, that is rotational inertia. It's okay, इसको हम I से लिखते हैं। चलो पहले हम काइनेटिक एनर्जी कंप्लीट कर दें, उसके बाद फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डिटेल्स में जाते हैं। नाउ इन द लाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग, ओके, वी कैन राइट दिस इक्वेशन स्टार एज। तो अब काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? ये इक्वेशन स्टार हमें काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, हाफ आ गया। ब्रैकेट टर्म को हमने क्या डिफाइन किया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं I, देन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होल स्क्वायर। दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। नाउ अगर हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को थोड़ा सा लीनियर मोशन एक सिचुएशन में जो काइनेटिक एनर्जी है, ओके, उसके साथ कंपेयर करके एनालाइज करें, तो सिचुएशन देखो क्या बनती है। काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ लीनियर मोशन है ना, कैसे लिखते हैं? हाफ, यही है। मास दैट इज इनर्शिया, लीनियर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होल स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों में एक प्रॉपर रिलेशन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर मोशन, हाफ, दोनों में कॉमन सेम। यहां पे इनर्शिया है, ओनली इनर्शिया, यहां पे रोटेशनल इनर्शिया आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां पे लीनियर वेलोसिटी का स्क्वायर है, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया। तो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन में हर जगह पे देयर इज अ प्रॉपर रिलेशनशिप, एनालॉजी है दोनों में। गॉट इट? ओके, बस ये है कि थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। तो अब आपको क्या पता चला यहां से? फर्स्ट थिंग जो आपको पता चला वो ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी इन द सिचुएशन ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी एंगुलर मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी होल स्क्वायर। एंड also we came to know about moment of inertia, that is rotational inertia. Moment of inertia of a rigid body, okay, is written like this: I ranges from 1 to n. ठीक, okay, and अगर हम इसको extrapolate करें, then I, moment of inertia of a rigid body, is equal to half m1 r1 स्क्वायर। हाफ नहीं है, हाफ मैंने रॉन्गली यहां पे लिख दिया, ओके। दिस इज m1 r1 स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टिल mn rn स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता रही है। इट्स अ न्यू क्वांटिटी फॉर यू बेसिकली। न्यू तो क्या है, वही ओल्ड ही क्वांटिटी है जिसको हम लीनियर मोशन में इनर्शिया कह रहे थे, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह दिया, नथिंग डिफरेंट। ओके, यू जस्ट रीड दिस इक्वेशन, गो थ्रू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन और इसको आराम से सोचना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ओके, बेसिकली क्या क्वांटिटी है। ओके, अगर हम सोचें तो कैसा सा नजर आएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, ठीक है। और बॉडी के किस किस प्रॉपर्टी के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल अबाउट moment of inertia, when we also will be taking into account those things on which the moment of inertia of a rigid body depends. Okay, till then you go through this particular video and wait for the next. Thank you, have a nice time.